Ji Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel that is exploring the concepts. So this is the class from HSSC 1, means FSC first year, and this is the class of biology. And today's topic is from chapter number 7, that is protist and fungi. And I'm going to discuss today Basidiomycota, which is also called as club fungi. So my today's topic is basically about classification of fungi, and in which I'm discussing the last class of Basidiomycota, which is the part of the syllabi of FSC. And this is also called as life cycle of mushroom. And first of all, starting with the Basidiomycota characteristics, देखते हैं कि होता कैसा है, body कैसी है. So as far as yeast is concerned, so that is the only unicellular species found present in fungi, which is unicellular, right? Rest of the fungi are multicellular. Same is the case with the Basidiomycota. They have mushrooms in this example, in this group, by the way. So Basidiomycota are multicellular. Most of them are terrestrial, means sorry, they are present in the land environment, saprophytic, parasitic, or mutualistic, right? So these different three types of lives they can spend, like decomposers, and they are parasites. Most of them, by the way, are parasites, and some of them also have mutualistic association in their life. As far as sexual reproduction is concerned, they form basidiospores formed on club-shaped basidia. But many species also go for asexual reproductions, in which conidia formation is most common, while there are also budding and fragmentation are the type of asexual reproduction as well. Their hyphae are separate, but obviously division is not in complete crossfalls. Whenever the hyphae are separate, so the division is not complete. There is a hole in the wall. So same is the case with them as well, and it contains one or two nuclei. Fruiting body of the Basidiomycota is called as basidiocarp. Means the mushroom is actually the fruiting body in this case, and that is called as basidiocarp. Okay, these were the general informations. Now, regarding the examples in this group, mushrooms producing Basidiomycetes are sometimes referred to as gill fungi. I'm going to show you a little after this what are gill and why where they are present. So gill fungi, they are also called as gill fungi. Club fungi भी कहते हैं. Club fungi मैं आपको शो करती हूँ अभी. Because of the presence of the gill-like structures on the underside of the cap, जो इसकी मशरूम की कैप होती है, उसकी बेस पे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम होता है जिन्हें गिल्स कहा जाता है, राइट? सो इसलिए उसी रेफरेंस से इसका नाम गिल फंजाई भी रख दिया गया है. और कॉम्पैक्ट फंजाई है, यानी कि जो फंजाई आपने देखे जो ब्रेड पे लग जाते हैं रोटी पे लग जाते हैं, वो आपने देखा धागों की तरह है, वाइट पतले पतले थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, शायद कभी देखा हो आपने. तो लेकिन ये अब इन केस ऑफ एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा, इन बोथ द केसेस दीज हाइफी दे फॉर्म अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, राइट? उन्होंने सारे हाइफी बहुत क्लोजली पैक्ड हो गए हैं, और पैक होकर दे हैव फॉर्म्ड अ वेरी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर which is called as mushroom in case of Basidiomycota, or cup-shaped body in the case of Escomycota. This group also includes shelf fungus, which cling to the bark of the trees like small shells. I'm about to show you. In addition to Basidiomycota, includes the smuts and rust, which are important plant pathogens, and toadstools. Toadstools are the poisonous mushrooms present in this group. मैंने आपसे बताया था कि ये ज़्यादातर तो पैरासाइट्स जैसे रस्ट है, स्मट्स है, आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पैरासिटिक फंजाई, एंड टोडस्टूल्स आर द पॉइजनस, मींस इसका ट्राई करते ही डेथ पॉसिबल है. एडिबल फंजाई भी हैं इसके अंदर, मगर ऐसे भी जिसमें डेडली टॉक्सिन्स हैं, और ये टॉक्सिन्स न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, जिसमें एक सॉरी एक एग्जांपल डिस्कस की हुई सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस के हवाले से. Okay, first of all, let me show you
द डायग्राम ऑफ ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई। ठीक है, आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा होता है। ये ये है जो ट्रीज पे लग जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये ट्री के साथ साथ शेल्फ्स बना देता है ना, तो इसको शेल्फ फंजाई या ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। पेरेंथीसिस की तरह की शेप है ना, इस वजह से इसको ब्रैकेट फंजाई भी कह देते हैं। ये आप देख रहे हो, ये ट्री के साथ साथ यूं अरेंज हुआ हुआ है। देन अनदर एग्जांपल, इफ पफ बॉल्स ये देखो कितनी खूबसूरत है ये, मशरूम की शेप्स की हैं, लेकिन पफ बॉल्स इन्हें बोलते हैं, बहुत बहुत प्यारी लगती हैं ग्रो हुई हुई। फिर ये है, ये पैरासिटिक फॉर्म है। ऑरेंज शेड इसमें चूंकि आता है इसलिए इसको रस्ट कहते हैं। और लीव्स आप देखिए ऐसे, ये आपने देखी भी होंगी कभी, कुछ पौधे ऐसे उन्हें फंगस लगी हुई होती है। और ये है स्मट। देखो पूरी स्मट का मतलब होता है डार्क ब्लैक, जेट ब्लैक। तो ये पूरी कॉर्न जो है, कॉर्न का बहुत फेमस पैरासाइट है ये स्मट्स। और ये ऐसे हो जाती हैं सीड्स, अंदर ये ग्रो करते जाते हैं ना, सीड्स ईट अप कर लेते हैं। और ये आप देखो, ये पूरा ये तो सारी एग्जाम्पल्स थी हमारे पास बेसिडियो माइकोटा की। दिस वन शेल्फ, दिस इज पफ बॉल्स, दिस इज स्मट, एंड दिस इज सॉरी, जो ऑरेंज कलर का ये रस्ट है, और नीचे स्मट्स हैं जो कि ब्लैक इन कलर है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द बॉडी पार्ट्स ऑफ द मशरूम। दिस इज द मशरूम। ये आप देख रहे हो, ये द कैप ऑफ द मशरूम, पाइलस, एंड द एन्यूलस एंड द स्टाइप, राइट। दिस इज द पार्ट ऑफ द मशरूम। दीज आर द लेमिली, राइट, विच आर कॉल्ड एज गिल्स। मैंने बताया था कि कैप के बिल्कुल नीचे गिल्स होते हैं। गिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव स्पोर्स। ठीक हो गया। अब ये वही स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं आपको। गिल्स के नीचे स्ट्रक्चर्स हैं बेसिडियम, ये इसके बेसिडियम हैं या बेसिडिया हैं। बेसिडियम सिंगुलर और बेसिडिया प्लूरल, जिसकी बेसिस पे इसके स्पोर्स बनेंगे। ये एक बेसिडिया है। और उसके आगे देखो, इसके अंदर होता है डिप्लॉयड सेल, जिसकी मियोसिस पॉसिबल है, राइट। और फिर आगे मियोसिस के रिजल्ट में चार सेल्स बने, यानी कि इसमें चार बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। जैसे मैंने आपको एस्कोमाइकोटा में बताया था कि उसकी रिजल्ट में 8 एस्कोस्पोर्स बनते थे। फिर अब यहाँ देखिए, ये वही है, कैरियोगेमी हो रही है, लेट होगी, वो मैं आपको लाइफ साइकिल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नाउ जब भी स्पोर्स गिरते हैं तो ये वाला माइसीलियम बनता है, मेल स्पोर फीमेल स्पोर। अब मेल और फीमेल तो ऑब्वियसली इनडिस्टिंग्विशेबल है, राइट। बट दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी माइसीलियम विच इज हैप्लॉइड। ठीक है, जो स्पोर्स गिरे ना, तो कुछ में ये वाले न्यूक्लियाई हैं, कुछ में ये न्यूक्लियाई हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्टेज और द प्राइमरी माइसीलियम। जैसे ही ये फ्यूज हुए तो प्लाज्मोगेमी हो गई। प्लाज्मोगेमी, यू नो द फ्यूजन ऑफ द प्लाज्मा। और जैसे ही दोनों ने फ्यूज किया, अब देखो हर सेल में दोनों किस्म का न्यूक्लिया है, दैट इज कॉल्ड एज डाइकैरियोन स्टेट या डाइकैरियोटिक जो फेज होती है, लेंथी डाइकैरियोटिक फेज है। पूरी मशरूम के मशरूम का हर सेल अप टिल बेसिडिया ऑल हैविंग, ये देखो इस वाली फिगर में देखो, ऑल आर हैविंग डाइकैरियोटिक मशरूम, डाइकैरियोटिक फेज में होते हैं सारे के सारे। फिर जब बेसिडिया मैच्योर हो जाते हैं, फिर ये वाले इस केस में फ्यूज करेंगे, एंड देन आफ्टर डिप्लॉयड बनेगा, और डिप्लॉयड के बाद ये हैप्लॉइड स्पोर्स में से फॉर्म हो जाएंगे। ये साइकिल मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी इन माय नेक्स्ट वीडियो। This was all about the general characteristics and the body parts of the mycelia. Basically, the body of fungus is mycelia, but in case of Basidiomycota, this is called as um, मशरूम, क्योंकि उसमें कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। आपके पास आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी फ्रॉम इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। आई थैंक यू ऑल फॉर द पेशेंस लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।